पाँव पे झटका लग गया था। अब ये चलते चलते अटकता तो नहीं है? अटकता नहीं, पर दर्द होता है। मतलब जिस तरह आप चल रहे हैं अचानक आके कुछ अटक जाता है, कटक का आवाज आता है, ऐसा तो नहीं है? घुटना मोड़ी, सीधा कीजिए। ये यहाँ पे दर्द आता होगा ना? इनका एक्सरे कहाँ है? एक्सरे का है? आपका एक्सरे हुआ है इसका? ना अच्छा, अनुराग इनको एक्सरे के लिए भेजिए। शी हैड सस्टेन्ड हिप फ्रैक्चर अराउंड 8 years back and they have replaced half of her hip was replaced elsewhere and she is complaining of pain and limp for the past 8 years. That means something is wrong with the surgery. Once you do replacement का मतलब यही होता है कि भाई आपको दर्द से मुक्ति कराना, यही मकसद है। तभी हम रिप्लेस करते हैं। अगर वो पेन है, पेनफुल है, तभी रिप्लेस किया जाता है ना। तो इनको हिप का, शी हैड गॉट हिप रिप्लेसमेंट डन 8 years ago, but now she is complaining of persistent pain. Then I examined her and found that the limb was short by around 8 centimeters. So 8 centimeters means the bone has collapsed 3 inches inside. There is shortening of the bone and there is loosening of the prosthesis. So she needs a revision of the hip replacement. Accordingly, I have tried to convince her, but she cannot afford. So we can try to send such type of patients. We can arrange a special camp for them, and they don't know anything about the illness and how long they are supposed to take the medications, and they cannot afford to even get any investigation done. What to talk about medicines? So I feel the trust is doing a wonderful job by giving them. I have never seen such a neat and clean hospital in my life. It is comparable to private setups like Max, Fortis, Vedanta. The cleanliness is superb and their dedication is noteworthy because everything is provided free of cost. The patient, the CT scan, the X-ray, the lab test, and there is no restriction when we are coming to take a camp. If I ask them, am I supposed to prescribe medicines for lesser number of days or should I restrict the number of investigations? No. There is no restriction on whatever investigation you write. Everything which is in house will be given free of cost. So that is the way a charitable hospital should be run. This is a proper charitable hospital. Illiterate people are concerned. You need to counsel them repeatedly that you need, this is a disease, the time it takes, the medications will have its effects, and you are not supposed to take these medications for a long time together, because if they start taking painkillers for many months, they will go and damaging the kidneys and livers also. So I feel the trust is doing a very wonderful job. I am blessed to offer my services here. ये दोनों तो झुके जो हाथ नहीं उठा सकता, 2 साल से दर्द। शुगर है बाबा? नहीं, शुगर बिल्कुल नहीं। ये कब से हो रहे हैं घुटने ऐसे? 2 साल 3 महीने। उखड़ू बैठते हो? उखड़ू बैठ पाते हो? हाँ, आलती पालती मार लेते हो? पालथी नहीं मार होता है। तीनों टाइम गर्म पानी की बोतल से सिकाई करोगे? गर्म पानी नहीं मिलता? अच्छा, तो एक जल मैं यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ मिलते हैं हमारे यहाँ पे। ये लगा लेना तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? और दर्द की दवाई भी दे रहा हूँ, कुछ नसों की ताकत की और हड्डी मजबूत करने की है। आराम लग जाएगा आपको। यहाँ आ सकते हो? आश्रम कितनी दूर है आपका? 3 किलोमीटर। हाँ, तो बस फिर फिजियोथेरेपी कराने यहाँ आ जाना, एक्सरसाइज कराने आ जाना। हफ्ते में 3 दिन आ सकते हो? हाँ, बस ठीक है। आज ही एक्सरसाइज होना। Osteoarthritis knee with periarthritis shoulder right side. So we can manage him conservatively as seeing all the structure. With exercises he can do well. Benefit of this hospital is a lot for them. We can, first thing is to make a diagnosis. So this is the utmost, I must say, important center here in Vrindavan, which can make an accurate diagnosis and treatment can be started accordingly. इसको तबीयत खराब हुई थी 6 तारीख को, तो मैं 6 को लेके आई थी पर्चर से बना हुआ। मैं 7 को यहाँ पे 7 को ही एडमिट किया शायद मैंने। तो ये शुक्रवार के दिन फिर इसे डिस्चार्ज कर दिया। हालत ठीक थी इसकी। अब ये कल इसके 4 बजे से रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए मैंने इसे बुलाया था।
परेशानी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 6 साल से परेशान हूँ। मैं जब बैठती हूँ तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। मैं किसी सहारे से बैठती हूँ, जैसे कुर्सी या दीवार के सहारे से बैठती हूँ। मेरे रीढ़ की हड्डी में दर्द है, और रीढ़ की हड्डी में दर्द है, और ये घुटने में दर्द है। जी जी जी, मैं बहुत फ़ायदा हुआ। 2016 में मेरा इलाज चला था, तो उसमें गले में मेरा प्रॉब्लम था, तो जो है उसमें हमको बहुत आराम मिला। गरीब के लिए बहुत आराम है, बहुत मतलब जितना तारीफ की जाए बहुत कम है। हम ये बैठते हैं तो ये घुटने नहीं बैठ पाते, घुटनों की माँ, और सुबह से उठते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और ये हाथ ऊपर को नहीं जाता है, बाएं हाथ ये ऊपर को नहीं जाता। हाँ, सुविधा बड़ी बात है भाई, कितने लोगों की सुविधा बहुत बड़ी बात है। इलाज भी फ्री, दवा भी फ्री, डॉक्टर भी फ्री, सब है। कोई पैसा लगता है ना। हाँ, हो तो जाता है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत अच्छा है ये, देखा जाए तो। मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, तो मैं इसलिए इन्हें दिखाने की, 2 बेटियां मेरी एक ऊपर एडमिट हैं, अभी इसे डिस्चार्ज कर दिया था शुक्रवार के दिन, तो अभी कल से दिक्कत हुई थी इसके, तो इसलिए मुझे फिर दोबारा से बुलाना पड़ा। आप लाख लाख करोड़ों धन्यवाद, बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पर सबका, मरीजों का ख्याल करते हैं और अच्छे से देखभाल होती है बच्चों की।